فلم ایک ایسے وقت میں شروع ہوتی ہے جب دنیا پر تاریک قوتوں کی حکمرانی ہونے والی تھی، لیکن پھر ایک نوزائیدہ لڑکی نمودار ہوئی جس کا نام ایلورا تھا۔ یہ پیشین گوئی کی گئی تھی کہ وہ بڑی ہوگی اور پوری دنیا کو بچائیں، لیکن جب تاریک قوتوں کی دیوی یعنی دیوی کو اس بات کا علم ہوا، اس نے ایلورا کو مارنے کے لیے اپنی بڑی سیاہ فوج کو ایلورا کے پیچھے لگا دیا، جس کے بعد ایک بونا جادوگر اور ایک چور نے ایلورا کی جان بچائی۔ پھر اسے تمام خطرات سے بچانے کے لیے اس نے ایلورا کی شناخت بدل دی، خود ایلورا سے بھی کہ وہ کون ہے، جس کے بعد ہمیں ایک شہزادی کٹ نظر آتی ہے جو اپنے دوست کے ساتھ لڑنے کی مشق کر رہی تھی۔ پھر وہ کہتی ہیں کہ ہمارے محل سے باہر کی دنیا کتنی مختلف ہوگی، اور پھر کچھ فوجی یہاں آتے ہیں اور شہزادی کٹ کو بتاتے ہیں شام کو پارٹی میں شرکت کرنا آپ کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ تمہاری ماں کا حکم ہے، اس لیے تم ضرور آؤ۔ پھر شہزادی کٹ کے بھائی کو شہزادے کو دکھایا گیا جو اپنے دوست کے ساتھ تھا۔ وہ اسے پسند کرتا ہے، اس لیے وہ اس کے ساتھ جینے اور مرنے کا عہد کرتا ہے۔ اس کے دوست اس کے محل میں کھانا پکاتے تھے۔ پھر ایک سپاہی آتا ہے اور شہزادے کو شام کی پارٹی میں آنے کو کہتا ہے۔ شام کو سب تیار ہو کر پارٹی میں پہنچ گئے۔ سب پارٹی سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ یہاں ملکہ نے اعلان کیا کہ مبارک ہو، آج اسے 200 سال ہو گئے ہیں، دوسرے شہر کی ظالم ملکہ کے مظالم سے آزاد۔ تب سے ہمارے اور دوسرے شہر کے لوگوں کے درمیان امن ہے، اور دوسرے شہروں کے لوگ ہمارے دوست ہیں۔ تو اس خوشی میں اپنی بیٹی کٹ سے شادی کرنے جا رہا ہوں، دوسرے شہر کے بادشاہ گریٹن کو، جس کے فائدے سے ہم تمام مسائل کا سامنا کریں گے جو دونوں شہروں میں اکٹھے ہوں گے۔ تب تک ہمیں کیا کرنا ہے؟ 7 جہانوں کی ملکہ ایلورا نہیں آتی۔ کٹ کی ماں رانی، جو چور کی بیوی ہے، جس نے ایلورا کی جان بونے جادوگر سے بچائی، اسی دوران ملکہ کو ایک عجیب سی آواز سنائی دی، چنانچہ وہ براہ راست جیل آتی ہے اور ایک قیدی سے ملتی ہے جو اس کے چور شوہر کا دوست بھی تھا۔ وہ اسیر ملکہ سے کہتا ہے، تمہاری بیٹی اس شادی سے خوش نہیں ہے۔ رانی جواب دیتی ہے کہ میں یہ اپنے لوگوں کے لیے کر رہی ہوں، کیونکہ جب تک ایلورا نہیں آتی دونوں شہروں کو متحد کرنا ہوگا۔ کٹ واقعی اس شادی سے خوش نہیں تھی، چنانچہ وہ اپنی شکل بدل کر اپنے دوست کے پاس آتی ہے، اور وہ اسے کہہ رہی تھی کہ میں شادی نہیں کرنا چاہتی، کیونکہ میں پرنس گرٹن کو پسند نہیں کرتا۔ میں محل سے بھاگ رہا ہوں، تم بھی میرے ساتھ چلو۔ لیکن اس کے دوست نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا۔ نہیں، میں اپنی ملکہ کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ لیکن کیونکہ کٹ اس کی دوست تھی اور وہ آخر کار راضی ہو گئی۔ محل کے باہر عجیب واؤ غریب عفریت آ چکے تھے۔ جیسے ہی ان میں سے کوئی ارتا ہے، اچانک پورے محل میں طوفان برپا ہو جاتا ہے۔ یہ دیکھ کر گارڈز پریشان ہو گئے۔ اچانک کیا ہوا؟ اچانک طوفان کہاں سے آ گیا؟ وہ سوچ رہے تھے کہ باقی تمام بدروہوں کو مل کر محل پر حملہ کر دینا چاہیے۔ کٹ اور اس کا دوست بھی تلواریں لے کر نکلے اور ان شیطانوں سے لڑنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن طوفان کی وجہ سے وہ بدروہوں کو نہ دیکھ سکے، نہ ہی بدروہیں انہیں ٹھیک سے دیکھ سکتی تھی۔ کہیں تلواریں مار رہے تھے اور مقصد کہیں اور تھا۔ جب ملکہ کو حملے کی خبر ملی، اس نے قیدی کو آزاد کر دیا، یہ کہہ کر کہ اب تم میرا خون بچاؤ گے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ یہ سن کر قیدی نے ہتھیار اٹھا لیا اور شیطانوں کا سامنا کرنے جاتا ہے۔ ایک شیطان اپنی لاٹھی پر کالا جادو کرتا ہے اور اس چھڑی سے ملکہ کے بہادر سپاہی پر حملہ کرتا ہے، جس کی وجہ سے وہ بری طرح زخمی ہو گیا۔ کٹ کا بھائی یعنی شہزادہ اپنے دوست سے شادی کے لیے کہہ رہا تھا، لیکن جیسے ہی اسے حملے کا علم ہوا وہ بھی چوکنا ہو گیا۔ وہ فوراً اپنا ہتھیار لے کر بدروہوں کو مارنے چلا جاتا ہے۔ محل کے تمام لوگ بدروہوں کا بہت اچھی طرح سامنا کر رہے تھے۔ وہ اس پر حملہ کر رہے تھے اور تلواروں سے اسے مار رہے تھے، لیکن یہ شیاطین بہت خطرناک اور خونخوار تھے، انہیں بھی تلواروں سے کاٹ رہے تھے۔ اور پھر قیدی ایک ہی وار میں اپنی تیز تلوار سے لیڈر کا ہاتھ کاٹ ڈالا۔ جیسے ہی وہ ایسا کرتا ہے، ایک ارتا ہوا شیطان یہاں آیا اور شہزادے کو اغوا کر لیا۔ شہزادے کے اغوا کی وجہ سے ملکہ اور سب بہت پریشان تھے۔
अपने बेटे को बचाने के लिए मलका अपने बहुत से सिपाहियों को कट के साथ भेजती है, क्योंकि इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था। साथ ही वो कैदी से कह रही थी, क्योंकि तुम भी महल से बाहर की तमाम हुदूद जानते हो तो तुम भी इनके साथ चलो। इसके बदले में तुम्हारे तमाम गुनाहों और खताओं को माफ कर दूंगा। कैदी राजी हो गया। वो ये भी पूछता है कि उड़ते शैतान शहजादे को अगवा करके अपने साथ ले जाया गया है, तो हम इसे कैसे ढूंढेंगे? रानी ने जवाब दिया, इसकी फिक्र ना करो, एक बोना जादूगर इस सब में आपकी मदद करेगा। वो दरिया के इस पार रहता है, तुम फौरन वहाँ जाओ, वो आपका इंतजार कर रहा होगा, क्योंकि ये सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसा इसने कहा था। जाने से पहले रानी कट को एक बड़ा राज बताती है। वो इसे कहती है कि जालिम मलका मेरी माँ थी, क्योंकि तुम, मैं और तुम्हारे भाई इसके खानदान का हिस्सा हैं, तो इसका खून हमारी रगों में दौड़ रहा है। वो हमारे खून और एलुरा के खून को इस्तेमाल करके जिंदा करना चाहती है और दुनिया पर राज करना चाहता है, क्योंकि इसकी रूह भटक रही है। वो बोने जादूगर और मैंने अपनी माँ को मार डाला, जिसके बाद में मलका बन गई। दरहकीकत वो बुरी ताकतों की गिरफ्त में इतनी आ चुकी थी कि वो बुराई की देवी बन गई, जिसका मतलब ये था कि शुरू में सिया क़ुव्वतों की देवी मलका की माँ के अलावा कोई नहीं था। वो एलुरा को मार कर एक और तारीख दुनिया का दरवाजा खोलना चाहती थी, जिसकी वजह से इस दुनिया की इसकी बुरी दुनिया यहाँ बन सकती है और वो यहाँ संभाल सकती है। इसलिए एलुरा और पूरी दुनिया को बचाने के लिए मैंने इसे मार डाला, और इसके साथ ही वो सब महल से निकल जाते हैं। रास्ते में इसे लगा कि कोई इसका पीछा कर रहा है, चुनाचे वो चुपके से इंतजार करने लगे, और फिर इन्होंने शहजादे के दोस्त को यहाँ पकड़ लिया, जो कह रहा था कि मैं भी शहजादे को बचाने के लिए तुम्हारे साथ जाना चाहता हूँ, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। कट पूछती है, लेकिन तुम क्या करोगे? तुम लड़ना भी नहीं जानते। वो जवाब देती है कि हाँ, मैं लड़ नहीं सकती, लेकिन मैं सफर में आपके लिए खाना बना सकता हूँ। राजी होने के बाद वो इसे अपने साथ ले गए, जिसके बाद वो तमाम लोग सरहद पार कर जाते हैं और एक मुख्तलिफ जगह पर आओ। यहाँ एक अजीब किस्म की हिफाजती दीवार थी, जिसे बड़े बड़े जादूगरों ने बनाया था इस जगह की शैतानी क़ुव्वतों की हिफाजत के लिए। वो थोड़ा आगे गए, जहाँ अजीब मासिक पहने कुछ अजीब लोग इन पर हमला किया, जिसकी वजह से एक नौजवान की जान चली गई। वो इनसे बचने के लिए भागने लगे। वो गोतर भी इनके पीछे था, लेकिन तभी एक बहुत गहरे दरिया के सामने वो अपने घोड़ों समेत कूद पड़े, ताकि अब वो कबीले के लोगों से जान बचा सकें। अब वो दरिया से निकलकर आगे चलने लगे। दरिया पार करने के बाद वो इस मकाम पर आते हैं जहां इन्हें आने का कहा गया था। फिर एक बोना इसके सामने आया। कट ने इसे बताया कि हम यहाँ के सबसे बड़े जादूगर से मिलना चाहते हैं, यहाँ लीडर कौन है? और फिर बड़ी बोनी जादूगरनी खुद इनके सामने नमूदार होती है, और ये वही जादूगरनी है जिसे मलका ने बताया था, और इसने एलुरा की जान बचाई थी। कट इसे यहाँ अपने बारे में बताती है, जिस पर बड़े जादूगर ने कहा कि मैं तुम्हें जानता हूँ और तुम्हारा भाई अभी तक जिंदा है। बदरूहों ने इसे उठाया और अपने साथ ले गए, इसे क्रॉन तक ले जाने के लिए। क्रॉन दरअसल जालिम जादूगर का खास सिपाही है। इसके पास बहुत सारी तारीक ताकतें भी हैं। वो बहुत खतरनाक है और अब वो तमाम गलत काम करती है। वो जालिम जादूगर की जिंदगी में वापस आने में मदद करेगी। वो बिखरे हुए समंदर के पार एक बहुत पुराने शहर में रहती है। कैदी ने फौरन कहा कि मैंने सारी दुनिया की सैर की है, बिखरे हुए समंदर जैसी कोई जगह नहीं। जादूगर ने कहा कि ये शहर बहुत ताकतवर और खतरनाक है, कि वहाँ हर कोई नहीं जा सकता। फिर जादूगर की नजर शहजादे के दोस्त पर पड़ती है। वो बहुत हैरान हुआ, फौरन इसके पास आया और इसका हाथ पकड़ लिया और कुछ मंतर पढ़ने लगते हैं, जिसकी वजह से राजकुमार के दोस्त के पहलू में एक टैटू नजर आ रहा है। जब एलुरा पैदा हुई तो इसके हाथ पर टैटू भी था। हैरान किन तौर पर जादूगर ने राज फाश कर दिया कि आप जादूगर एलुरा हैं और आप बहुत खास हैं। तुम्हें सरहद पार करके यहाँ नहीं आना चाहिए था, ये खतरा भी हो सकता है। लेकिन वो इसे कायल करती है कि आप गलत थे।
मैं कोई चुड़ैल नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक सादा सी लड़की हूँ। मैं पकाता हूँ। जादूगर ने कहा, नहीं, आप हमारी जादूगर एलुरा हैं। आप 7 जहानों की मलका हैं। आप इंसानियत को तारीख कुव्वतों से बचाने वाले हैं। वो अब ऐसा क्यों कह रहा था? हमें इसका इल्म चंद साल पहले हुआ था। जब इस जादूगर ने एलुरा को बचाया, इसने कट की माँ रानी को दे दिया ताकि वो इसकी हिफाजत कर सके और दुनिया से अपनी शनाख्त छुपा सकती थी। जादूगर मलका के पास आया और कहा कि अब एलुरा मुझे वापस कर दो, क्योंकि वक्त आ गया है, हमें इसकी तरबियत करनी चाहिए। लेकिन मलका ने ये कहकर इनकार कर दिया कि वो अभी बच्चा है, इसे झगड़ों से दूर रखना ही बेहतर है। जादूगर ने कहा, लेकिन हमें देर हो रही है। आखिर हम दुश्मन को कब तक रोक सकते हैं? ये चीज हमारे इख्तियार में नहीं है, और अगर हम इसे अभी नहीं सिखाएंगे, फिर वो अपना जादू भूल जाएगी। मलका को गुस्सा आ गया। इसने कहा, तुम इतने अच्छे जादूगर नहीं हो कि मैं इसे तुम्हारे पास जादू सिखाने के लिए भेजूं। अब इस जादूगर को बहुत बुरा लगा कि वो फौरन चला गया। अब मौजूदा दूर में बोना जादूगर इन्हें इनकी जगह पर लाया। जब सबको मालूम हुआ कि एलुरा जिंदा है और ये यहाँ है, तो सब बहुत खुश हो जाते हैं और एलुरा से बहुत मिले। लेकिन चूंकि वो अभी तक जादू नहीं जानती, रानी इतने सालों से एलुरा की शनाख्त छुपा रही है और इसे मेरे किचन में पकाने के लिए रख दिया, सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए। लेकिन अब जब इसे पता चला कि वो भी शहजादे को बचाने गई है, वो बहुत परेशान हुआ। वो फौरन अपने बहादुर सिपाही को भेजती है ताकि वो एलुरा को पकड़कर वापस ला सके। और यहाँ हम वाज़ेह तौर पर देख सकते हैं कि ये बहादुर सिपाही इफरीत के हमले में जख्मी हुआ है और इसके जिस्म में तब्दीलियां आती हैं और आमाल भी बहुत अजीब हैं। तमाम बोने एलुरा की आमद का जश्न मना रहे थे। जब एलुरा जादूगर से पूछती है, बिखरे समंदर को कब पार करेंगे शहजादे को तलाश करने के लिए, फिर जादूगर कहता है कि तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम यहीं रहोगे और जादू सीखोगे। लेकिन गुस्से में कहती हैं कि मैं ऐसे नहीं बैठ सकती, मुझे शहजादे को बचाने जाना है। और फिर आट कर चले गए। जादूगर की बेटी अपने वालिद को एलुरा की जादू की छड़ी देती है, जो इसे बचपन में मिला था। तब जादूगर को मालूम हुआ कि एलुरा गुस्से में कहीं चला गया है, इसलिए वो सबसे जल्दी करने को कहता है, वक्त जाया ना करें, इसको ढूंढो क्योंकि वो सियाफाम कुव्वतों और क्रॉन से सबको बचाएगी। थोड़ी देर बाद जादूगर ने एलुरा को दरिया के करीब पाया। वो इसे कह रहे थे कि तुम मेरे साथ चलने की जिद ना करो, आपकी जान को खतरा हो सकता है, आपको जादू सीखने पर तवज्जो देनी चाहिए। फिर एलुरा कहते हैं, ठीक है, मैं जादू सीखूंगा, लेकिन एक शर्त पर, आप भी हमारे साथ आएं। मुझे वहाँ जादू सिखाओ और हम भी शहजादा तलाश कर लेंगे। फिर जादूगर राजी हो गया, को नहीं रोक सकता। अब वो यहाँ से जाने लगे। जादूगर की बेटी इसे कहती है कि बाप अपना ख्याल रखना, तुम बड़े जादूगर हो, मुझे तुम पर बहुत भरोसा है। और वो चले गए। रास्ते में कैदी कट कहता है, एलुरा के वालिद भी जादूगर थे, जिसकी जादुई जरा बहुत ताकतवर समझी जाती है, जिसकी तलाश में मैंने सारी जिंदगी गुजार दी है। एक जगह जादूगर एलुरा को बीज देता है और इसे जमीन में दफन करने को कहता है और इसके साथ जादू मंत्र पढ़ो, जो बहुत मुश्किल था। वो ठीक से बोल भी नहीं सकती थी। जादूगर कहता है कि तुम बार बार मशक करो, अगर आप मंत्र को याद करने में कामयाब हो जाते हैं और पौधा इस जगह से निकलता है, तो समझो कि तुमने जादू सीख लिया है। अब एलुरा सुबह से शाम तक मशक करती है, लेकिन पौधा इस जगह से नहीं निकलता। तो वो जादूगर से कहती है, मेरा अंदाजा है कि मैं एलुरा वज़रड नहीं हूँ। ये सुनकर इसे गुस्सा आ गया। इसने कहा कि आपको इतनी छोटी लाइन याद नहीं। इस जादुई शहर में रहते हुए आपको बहुत से बड़े मंत्र कहना है। एलुरा भी इस डानेट से नाराज हो गई। वो आट कर वहाँ से चली जाती है और वो एक जगह अकेली प्रैक्टिस करने लगी। लेकिन फिर मलका की तरफ से भेजा गया बहादुर सिपाही आता है और इसे बेहोश कर देता है। वो इसे उठाकर अपने साथ ले जाता है। इसके बाद हम देख सकते हैं कि इस जगह से जामन फल का पौधा निकला है, यानी एलुरा ने जादू सीखा। इन सब बातों से बेखबर कैदी ने कट को अपनी आजमाइश सुनानी शुरू कर दी। इस जादुई गिलाफ की कहानी और इसकी
कलीद, जो सिर्फ इसके लिए है जो इसके काबिल है। लेकिन कट का कहना है कि ये कहानी बहुत बोरिंग है। तुम ऐसा करो, मुझे मेरे वालिद के बारे में बताओ, क्योंकि आप इसके दोस्त थे, आपको बहुत कुछ जानना चाहिए। इनकी गुफ्तगू के दौरान जादूगर यहाँ आया और इनसे पूछता है कि एलुरा कहाँ है। बहुत तलाश के बाद भी जब वो नहीं मिलता, हर कोई इसकी तलाश में निकलता है। कट के दोस्त ने बहादुर नौजवान को एलुरा ले जाते देखा। वो इसे बेहोश करके अपने साथ ले गया। वो पूछती है क्या कर रही हो, जिस पर वो जवाब देते हैं, रानी ने मुझे ऐसा करने को कहा। लेकिन वो समझ गई कि इसकी नीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए दूसरे यहाँ आए, जिसे देखकर बहादुर सिपाही, जो खुद तारीख होवतों की जद में आ चुका था, वो अपने तमाम साथियों को अपनी गिरफ्त में ले लेता है और इनके साथ कट और इसके ग्रुप पर हमला करता है। काफी देर तक दोनों ग्रुपों में तलवारों की लड़ाई जारी रही। वो एक दूसरे को बहुत मार रहे थे। जंग के दौरान ग्रेडन ने एलुरा को आजाद कर दिया, क्योंकि वो इसे पसंद करने लगा था। जादूगर ने एलुरा को बचाने का मंसूबा सोचा। इसने फौरन बम फेंक दिया, लेकिन मंसूबा गलत हो गया, क्योंकि एलुरा, बहादुर सिपाही और इसके साथी, वो एक धमाके के साथ वहां से गायब हो जाते हैं। जिसके बाद जादूगर और दूसरे एलुरा को बचाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। एक जगह आने के बाद गहरे बादल छाने लगे। इस पर फौरन एक पैगाम लिखा जाता है कि तारीख होवतों के लोग एलुरा के लोगों पर कब्जा करना चाहते हैं। इसके सामने दो रास्ते थे, लेकिन वो नहीं जानते थे जिस रास्ते से बहादुर सिपाही एलुरा को ले गया है। चुनाचे दो टीमें तश्कील दी गईं। कट सफर में कैदी से पूछती है कि तुम मेरे वालिद के साथ हो, तो आप मुझे इस बारे में कुछ क्यों नहीं बताते। तो अब वो कहने लगता है कि मैं ही नहीं, लेकिन आपके वालिद भी इस जादुई गिलाफ की तलाश में थे, क्योंकि इसकी मदद से हम क्रोन को रोक सकते हैं, जालिम जादूगरों और तारीख होवतों को इस दुनिया में लाकर। थोड़ा आगे जाकर इसे एक खंडर दरवाजा नजर आता है। अंदर गया तो वहाँ एक कुआं था, जिस में कैदी बगैर सोचे छलांग लगा देता है। वहाँ इसे जादुई गिलाफ की चाबी मिलती है, यानी आज इसकी एक तलाश मुकम्मल हो गई। ये लेकर वो जल्दी से बाहर आता है और कट लेकर बाहर चला जाता है। इसने पूछा क्या तुम्हें कुएं से कुछ मिला, लेकिन वो जवाब नहीं देता। एलुरा को पहाड़ की दूसरी तरफ ले जाने वाला बहादुर सिपाही, इससे पहले कि ग्रेडन और इसका गिरोह वहां पहुंच जाए, ग्रेडन ने सिपाही के सर पर पत्थर मारा और इसे इससे दूर रहने को कहता है। इसके साथ ही इनके दरमियान तलवार की जंग शुरू हो जाती है। कट और कैदी भी एक दीवार तोड़कर वहां आते हैं और कांस्टेबल से लड़ने लगे। अपनी तारीख ताकतों की तलवार से ग्रेडन पर हमला करने के बाद बहादुर सिपाही और इसे जख्मी करता है। इससे पहले कि वो ग्रेडन को मार सकता, बोना जादूगर अपनी जादू की छड़ी जमीन पर मारता है, जिसके जरिए तारीख होवतें, सिपाही और इसके साथियों को ले गए। जैसे ही बुरी ताकतें खत्म हो जाएं, सिपाही को तकलीफ होने लगती है। इसे होश आया, लेकिन इसकी हालत ठीक नहीं थी। वो कट के दोस्त से कहता है कि अब से तुम एलुरा का ख्याल रखोगे। मेरा वक्त आ गया है और बड़ा करम मुझ पर एक एहसान करें, प्लीज मुझे इस तकलीफ का जिंदगी से निकाल दो। वो रोने लगती है क्योंकि वो ऐसा नहीं करना चाहती, क्योंकि इस बहादुर सिपाही ने इसे अपनी बेटी की तरह पाला है, लेकिन साथ ही इसे दर्द से दूर रहना चाहिए। वो भारी दिल से तलवार उठाती है और इसे एक ही वार से मार डालता है। अब वो अपने मुर्दा दोस्तों को दफन करके आगे बढ़ते हैं, लेकिन ग्रेडन कमजोर होने के बाद गिरता है, क्योंकि वो इस हमले में बुरी तरह जख्मी हुआ था। शैतानी होवतें जल्द ही इस पर कब्जा करने वाली थी। अब जादूगर को एक शहर मिल गया है जो बहुत पहले गायब हो गया था। हर कोई इस महल में आता है। ये महल किसी और का नहीं बल्कि मलका की माँ का था। जालिम मलका और कट की दादी। जादूगर अंदर आ रहा है, ग्रेडन से जोड़ता है, इसलिए इसकी काली ताकतें किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। ग्रेडन का कहना है कि मैं नहीं चाहता कि तुम किसी को नुकसान पहुंचाओ, मुझे मार देना बेहतर होगा। अब कट पहले ही इससे शादी नहीं करना चाहिए, और वो लाइब्रेरी से किताब ले आया, जिसमें सब कुछ लिखा था कि काली ताकतों को कैसे खत्म किया जाए, जिसके लिए कुछ लवाजमात दरकार थे। वो सबसे कहता है कि इसके लिए पूरे महल को चेक करें।
लेकिन ये भी मना करता है कि तुम में से कोई भी राज भवन के मकबरे के करीब ना जाए। वो तारीख कुव्वतों को बाहर निकालने का अपना काम शुरू करता है। जब वो गिरेडन की कमीज के बटन खोलता है, इसके जिस्म पर अजीब वाव गरीब निशानात थे जो बढ़ रहे थे, जिसके बारे में ना तो वज़रत जानता है और ना ही गिरेडन। जादूगर अपने निशानों पर खोलता हुआ पानी डालता है। किताब पढ़ने के बाद वो जुड़ी बूटियां डालने लगता है, जिसकी वजह से इसे दर्द होने लगता है। उसी दौरान एलोरा को एक आवाज सुनाई देती है। जब वो एक कमरे में इसका पीछा करती है, इसे एक ख्याल आने लगता है जिसमें इसकी मां मर रही थी। ये देखकर वो बहुत परेशान हो जाती है। जब वो नॉर्मल होकर अंदर आई, गिरेडन ने मुकम्मल सेहत याबी की। वो इसे महफूज देखकर खुश हो जाती है। सब कब्र पर गए। चुड़ैल ने भी तुम्हें वहाँ बुलाया है, ये कहकर वो इसे कब्र पर ले गया। यहाँ आने के बाद गिरेडन एक शैतान में बदल जाता है। जब एलोरा ये देखकर भागने लगती है, ये देखकर जादूगर आता है। गिरेडन एक बड़ा पत्थर फेंकता है और इस पर हमला करता है। बस वक्त पर जब जादूगर घूमता है, वो बाल बाल बच गया। गिरेडन के अंदर की बुरी ताकत एलोरा से कहती है, जालिम मलका अपनी ही गलती से मर गई है। मैं वो गलती कभी नहीं करूँगा जो इसने की थी। ये कहकर इसने एलोरा को दबाया और इसे पकड़कर काली दुनिया का दरवाजा खोलना शुरू कर देता है। वो कब्र के करीब था। जादूगर दोबारा अपनी जादू की छड़ी लेकर गिरेडन पर हमला करता है। इससे वो काफी दूर गिर जाता है। वो इसे यकीन दिलाती है कि सिर्फ तुम ही इसे बचा सकते हो, क्योंकि आप 7 जहानों की मलका हैं। अगर तुम इसे नहीं बचा सकते, आप अपनी बाकी जिंदगी दर्द में गुजारेंगे। यकीन दिलाने के बाद एलोरा गिरेडन के पास पहुंची और अपने अंदर की तमाम काली ताकतों को अपने मुंह से खींचने लगता है। इनकी कोशिशों से गिरेडन मुकम्मल तौर पर ठीक हो गया। वो आठ कर बैठ जाता है। फिर जिन बदरूहों ने कट के भाई को कैद किया है वो इन्हें देखते हैं। वो फौरन आते हैं और इस पर हमला करते हैं। जादूगर जादू करता है और अपने छोटे आले से आग जलाने के बाद और तमाम बदरूहों को मार डाला। वो सब एक जगह पर आते हैं और फरार होने के बाद छप जाते हैं। लेकिन बदरूहें वहां आने के लिए काफी होशियार थी। इनसे बचने के लिए वो जंगल में आते हैं जहां शैतान दाखिल नहीं हो सकते। वो एक बार फिर फरार हो गए। एलोरा को एक जगह ले जाने के बाद वो इसे जादू सिखाना शुरू कर देता है। फिर कबीला का सरदार इन्हें अपने पास ले जाता है। कट कबीले के सरदार के पास आता है और इससे कहता है, इस ताज ने मेरे भाई को कैद कर रखा है, हमें इसे बचाना है और बड़ा करम हमें जाने दें। ये सुनकर सब हंसने लगते हैं। इन्हें पकड़ने के बाद वो इन सब को मुख्तलिफ जगहों पर गुलाम बना लेते हैं। कट एलोरा के साथ थी और इसने इसे बताया कि मैं अपने दोस्त के बारे में फकरमंद हूँ। अगर वो इसे मारी तो किया होगा, क्योंकि इन्होंने इसे मुख्तलिफ तरीके से गुलाम बना रखा है। एलोरा इसे पुरसुकून करती है और कहती है कि कुछ नहीं होगा। छड़ी दिखाने के बाद वो इसे कहती है कि मैंने इसे जादूगर से चराया है, इसकी मदद से हम बाहर जा सकते हैं। जादूगर वहाँ एक छोटा सा घर देखता है जिसमें छोटे छोटे लोग रहते थे। वो हाथ के बराबर छोटे थे। जादूगर का बोना दोस्त इसे एक नक्शा देता है, इसकी मदद से वो भाग सकते हैं। एलोरा एक छड़ी दिखाती है और कहती है कि मैंने इसे जादूगर से चराया है। वो इसकी मदद से जादू कर रही थी। वो जादू करती है और जैसे ही वो कट के साथ भागना शुरू करती है, गोतर के लोग आते हैं और इसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। वो फिर पकड़े जाते हैं। कबीले का सरदार फिर इनके पास आता है। कट का दोस्त आता है और इसे पकड़ता है और इसकी गर्दन पर चाकू रखता है। लीडर ने इसे आजाद कर दिया और कट के दोस्त से लड़ना शुरू कर दिया। इसने इसकी गर्दन पर एक निशान देखा और रोके जाने के बाद वो इसे अपने खेमे में आने को कहती है। जब कट का दोस्त लीडर से मिलने जाता है, वो इसे बताती है कि इसकी गर्दन पर भी वही निशान है जो तुम्हारे पास है। ये हमारे कबीले में लागू होता है जब बच्चे की उम्र 10 दिन है। इसका मतलब है कि हम एक ही खानदान से हैं और तुम मेरी बहन हो, जिसे कुछ लोग छीन कर ले गए। बदरूहें फिर आती हैं और इन पर हमला करती हैं। वो बहादुरी से इनका सामना करता है। इनमें से एक को कैदी ने कत्ल कर दिया।
بعد में हम राजकुमार को देखते हैं जो इसे एक वीरान जगह पर पाता है। वो जाने का सोच रहा था लेकिन फिर इसे एक औरत की आवाज सुनाई दी। ये कोई और नहीं बल्कि क्रॉन था, वो देओ हैकल मफलोक, जिसने वज़रड और कट को अपनी गिरफ्त में ले लिया है और इन्हें इनकी जगह पर ले आए। यहाँ एक और शख्स भी कैद था जिसे बड़ी मखलूक ने कैद कर रखा था। वो कहता है कि तुम यहाँ से कभी आजाद नहीं होगे, क्योंकि जब मुझे यहाँ लाया गया तो मैंने सोचा कि मैं आजाद हो जाऊंगा, लेकिन देखो मैं इतने सालों के बाद भी यहाँ हूँ। वो इसे अपने बारे में कहता है कि मैं चोर का साथी हूँ, यानी कट का बाप। अब कैदी और दीगर कट और जादूगर को तलाश करने के लिए एक जगह पर आए। बड़ी मखलूक कट को तकलीफ देने लगी है, क्योंकि वो जानना चाहते थे कि एलुरा कहाँ है। वो इसे कीड़े खिलाते हैं कोशिश कर रहे थे, और वो इसे बताते हैं कि क्रॉन हमारी मलका है, वो नहीं है जो तुम इसके बारे में सोचते हो। उसी दौरान कैदी और दीगर लोग पहुंच गए। मखलूक जानती है कि यहाँ और लोग आए हैं। मखलूक इनको पकड़ने जाती है। इस दौरान कट ने खुद को आजाद कर लिया। इसके बाप कट ने चेहरों पर मासिक पहनते थे, इसलिए जानदार इसे नहीं पहचानते। मखलूक इन तक पहुंच चुकी है लेकिन मासिक की वजह से वो इसे पहचान नहीं पा रहे हैं। कैदी एलुरा और कट के दोस्त को एक जगह ले जाता है। चोर कट और जादूगर को भी वहां ले जाता है। सब एक दूसरे से मिलकर खुश थे और एक खुफिया दरवाजा खोलने का फैसला किया, इस उम्मीद के साथ कि शायद खजाना हो। अंदर जाने से पहले इससे 2 पहेलियां पूछी गईं। अगर वो सही जवाब दे तो ठीक, वरना मर जाएंगे। तो सोच समझकर सही जवाब देने के बाद अंदर आते हैं। वहाँ बहुत सा खजाना था। एक जादुई चादर थी जिसे कैदी ले जाता है। कट ने अपने वालिद की तलवार वसूल की। वो बहुत गमगीन हुई और तलवार उठा ली। इसके साथ ही वो अपने बाप की आवाज सुनने लगता है। इसका पीछा करते हुए वो जाने लगती है, लेकिन एलुरा ने इसे ऐसा करने से रोक दिया। जब वो जाने लगते हैं तो बड़ी बड़ी मखलूक इनके सामने आ जाती है। दोनों तरफ से शदीद हमला हुआ, इसलिए वो दूसरी जगह भागते हैं। इस जगह के नीचे बहुत पानी था और वो कट को बचाने की बहुत कोशिश करते हैं। एलुरा इस छड़ी से जादू करती है लेकिन ये बेकार थी, क्योंकि कट से नीचे गिरने की वजह से रास्ता बंद हो गया था। शहजादा, जो एक तन्हा जगह में फंस गया था, वो बार बार उसी जगह आता है। वो थका हुआ था और एक जगह बैठा था कि इसे एक लड़की की आवाज सुनाई दी। शहजादा इसे बताता है कि शैतान हमें यहाँ ले गए हैं। मैंने इस जगह को छोड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं इस जगह पर बार बार आता हूँ। एलुरा बार बार अपना जादू कर रही थी। आखिर में वो कामयाब हो जाता है। वो चलने लगते हैं और बाद में एक झोंपड़ी में आते हैं। एक बूढ़ा आदमी था जो इनसे कहता था, अगर तुम समंदर पार जाना चाहते हो तो मैं तुम्हें अपना जहाज दूंगा। वो एक बड़े समंदरी जानवर की मदद से जाता है, लेकिन मैं इसके बदले पैसे लूंगा, और वो मान गए। जब शहजादा बेदार हुआ तो इसे लड़की ना मिली। इसे ढूंढते ही वो इसे एक जगह खड़ा देखता है। वो इसे कहती है कि हमें इस पीले रास्ते के दूसरी तरफ जाना है। शायद कोई रास्ता हो, लेकिन शहजादे को ये अजीब लगता है। वो सब झोंपड़ी में थे जब बदरूहें वहां आए। इनको बचाने के लिए गरीडन इन सबको ले जाता है और जहाज पर बैठकर चले गए। वो जहाज जिसे एक समंदरी जानवर ने चलाया था। बदरूहें अभी तक इनका पीछा कर रही थी। वो बहुत कोशिश करते हैं और इनसे लड़ते हैं, और एलुरा अपना जादू करती है, लेकिन ये बेकार था। जैसे ही गरीडन अपनी बांसुरी बजाता है, फिर इफरीत हुआ में भड़क उठा। बाद में वो दूसरे शैतान से भी छुटकारा पाते हैं। गिरेडन बांसुरी से जादू करता है, इसका मतलब है कि वो जादूगर भी था। गिरेडन समंदरी जानवरों को खाना खिला रहा था। एलुरा भी जादू सीख रही थी। वो हर तरह का जादू करती है। वहाँ लड़की शहजादे से अजीब बातें कर रही थी। वो कहती है, मैं तुम्हारे सामने आई हूँ। इसने शक किया और इससे पूछा कि तुम मुझे लेकर आई हो। वो जवाब नहीं देती। ये सब छोड़ दो और मेरे साथ चलो। वो कुछ अजीब महसूस करता है और भागने लगता है। अब जादूगर समझता है कि इसकी बेटी मुश्किल में है। इसने जाने का फैसला किया, लेकिन एलुरा ने इसे ये कहकर रोक दिया, नहीं, बरा करम यही रही, हमें आपकी जरूरत है, अब इसकी बात मत सुनो। लेकिन वो लड़ता रहता है। कट भी इसका सामना करती है और इसे नीचे फेंक देती है। वो इसे मारने ही वाली थी जब जादूगर वहां आया। इसे अपनी लाठी के इख्तियारात देने के बाद वो इसे कहता है कि तुम्हारा भाई अंधेरे में है। इन ताकतों की मदद से वो रोशनी में आएगा। इन ताकतों से वो अपने भाई को ठीक करना शुरू कर देती है।
शहजादा अपने माजी से अब तक का वक्त याद करने लगता है कि मैंने अपने खानदान और कट के साथ इतना अच्छा वक्त गुजारा। इन यादों के साथ शहजादा तारीक क़ुव्वतों से बाहर आता है। इसका चेहरा जो मनफी तवानाई की वजह से बिगड़ गया था भी ठीक हो गया है। कट अपने भाई को ठीक होते देखकर बहुत खुश है। बाद में हमें एक मकाम पर गिरेडन मिलता है और इसके इर्द गिर्द लाशें पड़ी थी, यानी वो मुर्दा नहीं था बल्कि जिंदा था। और जब क्रॉन ने इसे पीले रास्ते पर फेंक दिया, वो दूसरी दुनिया से इस दुनिया में आया था। जब इसकी आंख खुलती है तो वो एलुरा को अपने सामने पाता है। वो इसे कहती है कि मैं अकेली इस दुनिया पर हुकूमत नहीं कर सकती, मुझे तुम्हारी जरूरत है। बाद में हम शैतानों की एक बड़ी फौज को देखते हैं। इससे जाहिर होता है कि वो एलुरा नहीं थी बल्कि अपनी जात में एक जालिम मलका थी। इसने एलुरा की शक्ल इख्तियार कर ली है ताकि वो इसे अपनी बात पर ले सके। इसने गरीडन को बताया कि इसे इसकी जरूरत है क्योंकि वो गरीडन को जिंदा रहने और दुनिया पर हुक्मरानी करने के लिए इस्तेमाल करने वाली थी। वो इसे गलत काम करने को कहती है जैसा कि इसने क्रॉन से लिया।